I welcome you all in the next video tutorial of HU Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration. So dear all, in this video we are going to cover mileage allowance. So before starting, this is for educational purposes only. There is no commercialization involved, and please refer to standard rules and regulation in case of any deviation. And this channel acknowledges all the online offline platforms reading material from this video. So let's start. So what is this mileage allowance? The supplementary rules 29 in the FRSR and about the सप्लीमेंट्री रूल एफआरएसआर के पार्ट 2 में बताया गया है टीए रूल्स के बारे में। वो टीए रूल्स के सप्लीमेंट्री रूल 29 में माइलेज अलाउंस की बात की गई है। तो देखते हैं माइलेज अलाउंस क्या चीज है। माइलेज अलाउंस इज एन अलाउंस कैलकुलेटेड ऑन अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड which is given to meet the cost of a particular journey. सिंपल, ये अलाउंस मिलेगा जिसको कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड which is given to meet the cost of a particular journey. सप्लीमेंट्री रूल 30 देखते हैं। 30 के 3 पार्ट्स हैं, 30A, 30B, 30C। तो सप्लीमेंट्री रूल 30A said that for the purpose of calculating mileage allowance, a journey between two places is held to have been performed by the shortest of two or more practicable routes or by the cheapest of such routes as may be equally short, provided that when there are alternative railway routes and the difference between them in point of time and the cost is not great, mileage allowance should be calculated on the route actually used. ये एक पॉइंट देखने वाली बात है। अगर सप्लीमेंट्री रूल 30 की बात करें तो 30 के अंदर ये चीज क्लियर कर दी गई है कि हमें शॉर्टेस्ट रूट ही फॉलो करना है जब भी जर्नी करते वक्त। इट शुड बी द शॉर्टेस्ट रूट। एक बार रीड करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग माइलेज अलाउंस, a journey between two places is held to have been performed by the shortest of two or more practicable routes or by the cheapest of such routes as the case or as may be equally short, provided that when there are alternative railway routes and the difference between them in point of time and the cost is not great, the mileage allowance should be calculated on the route actually used. तो कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि जब भी हम किसी टूर पे जाएं तो शॉर्टेस्ट रूट ही हम फॉलो करें। द शॉर्टेस्ट रूट इज दैट, बी पार्ट देखते हैं, बाय विच द ट्रैवलर कैन मोस्ट स्पीडीली रीच हिज डेस्टिनेशन बाय द ऑर्डिनरी मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग। तो ऑर्डिनरी मोड ऑफ ट्रैवलिंग की बात की गई है यहां पर। इन केस ऑफ डाउट, a competent authority may decide which shall be regarded as the shortest of two or more routes. तो competent authority डिसाइड करे। मान लीजिए 2 रूट हैं। आजकल जैसे हम गूगल पे देखते हैं, मैप दिखाता है, मैप में आपको बता दिया कि एक रूट में 50 मिनट का रास्ता है और दूसरे रूट से 48 मिनट का रास्ता है, क्लोज कॉल है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करे कि उसको कौन सा रूट फॉलो कर रहा है। वैसे तो जिसमें 48 मिनट का रास्ता है और उसमें किलोमीटर्स भी देखने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें किलोमीटर्स भी देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये चीजें डिसाइड होंगी। सी पार्ट देखते हैं। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रेवल्स बाय रूट व्हिच इज नॉट द शॉर्टेस्ट बट इज चीपर देन द शॉर्टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हिज माइलेज अलाउंस शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द रूट एक्चुअली यूज्ड। तो ये पॉइंट में सब क्लियर हो चुका है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रेवल कर रहा है और उसका रूट which is not the shortest but cheaper than the shortest, लेकिन वो shortest नहीं है लेकिन वो cheaper है, then in this case his mileage allowance should be calculated in the route actually used. उसने यूज किया है उसी के बेस पर ही उसका माइलेज अलाउंस को कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये बात यहां पर क्लियर होती है। Yes, there are some special concession that a competent authority may, for special reason, which should be recorded, permit traveling allowance to be calculated on a route other than the shortest or the cheapest, provided that the journey is actually performed by such route. तो ये कंसेशन भी दे रखी है। सप्लीमेंट्री रूल 31 इसकी बात कर रहा है। तो आई होप ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं माइलेज अलाउंस लिखते वक्त। सप्लीमेंट्री रूल 29, 30 और 31।
29 में तो डिफाइन किया गया माइलेज अलाउंस इज एन अलाउंस कैलकुलेटेड ऑन अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज गिवन टू मीट द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर जर्नी के बारे में बताया गया। सप्लीमेंट्री रूल 30A, 30B, 30C में 3 बिंदुओं पर केंद्रित किया गया जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ माइलेज अलाउंस की बात कही गई है। तो किस तरह से ये डिसाइड होगा उसके बारे में बात बताई गई। सप्लीमेंट्री रूल 31 में तो स्पेशल कंसेशन बताया गया। So thank you all for a valuable time.